इंटरनेशनल लेवल के ऊपर दैट वन पीस ऑफ न्यूज व्हिच हैज कैप्चर्ड एवरीबॉडीज अटेंशन इज Andrew Mountbatten Windsor was arrested, and I really never thought that I would see that day in my lifetime. मुझे ऐसा लगता था कि किसी तरीके से कवर करेंगे उसको, सेंट्रिंगम ले जाएंगे, छुपा देंगे. They all live in the gilded cages anyway, तो बस ठीक है. आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ people will forget Andrew Mountbatten Windsor. They will only think of him as that disgraced former prince. But what happened was, on his 66th birthday, on 19th February this year, एकदम से खबर आती है एंड्रू माउंटबेटन विंडसर अरेस्टेड, नॉट इवन बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, नॉट इवन इंटेरोगेटेड, सीधा अरेस्टेड. तो उसके बाद से बहुत सारे लोग तबसरा कर रहे हैं, बट now I've got Sadia Ahmed with me, and she has a lot to say about this. And she was one of those very few people who actually pointed out okay, he hasn't really been arrested for the sexual misdemeanors that he's been accused of, but actually for misusing public office, for misuse of public authority, for public office, और उसको उसने private gain के लिए use किया. And he shared information with Jeffrey Epstein, insider information, to which he had access as state envoy from 2001 to 2011 when he served in that role. So, हाँ जी सादिया बताइए, how do you see this? What do you think of these developments? First of all, thank you so much for having me on your podcast, Maneeb. I really love watching your show, and it's very exciting to be a part of this show at the moment. Although the topic that we will be discussing at the moment is a bit grim, it is not something that we are particularly excited about, but it is a topic that we must discuss and have an effective social discourse about. The former Prince Andrew Mountbatten Windsor, I totally agree with you on this. जो आपने बात कही कि हमें नहीं लगता था कि we would see a day where a member, and actually he was a working member of the British royal family, he was and is the son of the former Queen. He is the brother of the current King of England. यूजुअली हमें ये लगता है कि जब भी कुछ इस तरह की चीज होगी उसमें ये होगा कि वो लोग जो इन्फ्लुएंस वाले हैं वो इस तरीके से सजा की पकड़ में नहीं आएंगे. And we have so many examples. You see Bill Gates, who's still doing the apparently philanthropic work. We have Deepak Chopra, who's in the Epstein files. We have Hillary Clinton, who just met Neeta Ambani. Abhi wo pictures aa rahi Hillary Clinton, who just met Neeta Ambani and Noam Chomsky. We never thought that we would see these names. And so yeah, लेकिन इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि Andrew Mountbatten Windsor is the one whose titles have been removed, and he was also arrested. I think it was 2 days ago. Yeah. So I think we need to delve deeper into it. Is it the British monarchy saving its face? Because there are so many conversations going around कि monarchy को खत्म होना चाहिए because it's a huge fracture on the taxpayers' money. And we've also seen how the British monarchy has evolved over the current years. Now they are more accessible, or probably accessible like it's performative. Performative. All right. Accessibility, probably. All right. Performative, probably. क्योंकि जैसे हम पहले देखते थे ना, अगर आप रिकॉल करें वो वाला जमाना 1960s का देख लें, 1970s का देख लें, and also when Princess Diana joined the British royal family, it was considered an anomaly that a princess is shaking hands with people. ये लोग अपने आप को आवाम से इतना बरतर समझते थे और समझते हैं कि ये लोगों के साथ हाथ भी नहीं मिलाते थे. और अब आप देखते हैं कि तस्वीरें आती हैं, प्रिंस विलियम इन bare feet, Prince William is wearing jeans, selfies, they're going out, like hugging people and doing this and doing that. I think it's the British monarchy saving its face to avoid the public backlash. All right. I'll give my 2 cents on this. कि British monarchy आज किधर stand करती है and over the years. So, absolutely, I believe there used to be total deference to authority initially. I mean, when I'm talking about वो जो The Crown के season 1 और season 2 में periods cover करके उन्होंने दिखाया ना, 1940s, 1950s, 1960s, उस वक्त बिल्कुल एक ही चीज होती थी. There used to be this
line between कि they are the I mean not just one sovereign but also their royal highnesses. और एक वो British podcaster हैं commentator हैं जिनका नाम Alex O'Connor है, and he keeps on saying कि what do you mean by a royal highness? I mean it's a relative term, highness, so higher than whom? वो वाली चीज थी, and majority of the British public, they were very 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 respectful and mindful of that. But eventually I think कि there was the abdication crisis in 1936 when the former King Edward VIII abdicated the throne because he wanted to marry Wallis Simpson. But उस वक्त थोड़ा बहुत एक मुझे लगता है कि वो जो लोगों के अंदर जुर्रतें थी वो आ रही थी कि they were now criticizing the institution and those at the very top of it. But वो चीजें जरा थम गई थी. King George VI आया और फिर हम जिस तरह you've mentioned Queen Elizabeth II, she is the longest serving monarch in British history. तो तब तक चीजें काफी हद तक संभली नहीं थी. बट व्हाट हैपेंड वाज Diana's death, I think, and it dealt a huge blow to the monarchy's authority, to the royal family's authority, क्योंकि वो हमेशा ये assume करते थे ये एक स्लोगन है इनका, never complain never explain. और साथ में क्वीन एलिजाबेथ ये भी कहती थी कि I must be seen to be believed. So it was this mixture of connecting to the public, not having those barriers or too high barriers which cannot be surmounted कि जी वो बिल्कुल ही distant figure एक लग रही हो. So they sort of tried humanizing the royal family. इन्होंने एक documentary भी बनाई थी BBC के ऊपर which did not work out very well, but खैर इन्होंने बनाई थी to give a glimpse into the royal family कि we are just like any other ordinary family, हम भी पिकनिक को खाया करते हैं. But so they try to balance it, उनके साथ relate भी कर सकें लोग but at the same time उनकी इज्जत भी करें. But ये जो balance वो strike करने की कोशिश कर रहे थे when Diana died and people wanted the queen to own publicly. तो आई थिंक कि वहां एक डेंट आया था और तब क्वेश्चन किया जा रहा था कि जी ये मोनार्की कितनी देर तक चल सकती है, दिस इंस्टीट्यूशन व्हिच इज बाय द वे अनइलेक्टेड, इफ पीपल डिड नॉट नो ऑफ दैट. बट उसके बाद क्या हुआ कि दे गॉट आउट ऑफ इट, दे रिडीम देमसेल्व्स, एंड जेफरी एप्स्टीन स्कैंडल, वो जो कि 2019 में आई बिलीव बहुत ज्यादा उसको अटेंशन मिलना शुरू हो गई थी बिकॉज एप्स्टीन देन कमिटेड सुसाइड इन प्रिजन. एंड नवंबर 2019 के अंदर एमिली मेटलिस बीबीसी न्यूज नाइट के ऊपर शी इंटरव्यूड एंड्रू, which was a car crash interview, because Andrew believed that interview could help him redeem himself, but actually वहां से शुरू हुआ था उसका डाउनफॉल. उसने काफी क्लेम्स किए थे एंड्रू ने कि वर्जीनिया जेफरी, एंड उसकी बुक यहाँ पड़ी हुई है मेरे पास, जो कि बाय द वे इट्स वेरी सैड व्हेन यू रीड बिकॉज नाउ शी इज नो मोर, and it's a story of how a person, she went into that rabbit hole of being victimized, being trafficked, and then came out of it and triumphant, only to then by the time the book is published to die very tragically. So Virginia Jeffrey के हवाले से उसने कहा था एंड्रू ने, नो आई हैव नो recollection of her whatsoever. नहीं, वो तो वो जो कह रही थी कि I was sweating, I don't even sweat, मुझे तो एक कंडीशन है जिसकी वजह से आई डोंट स्वेट. वो इतना कोई बड़ा कार क्रैश इंटरव्यू था एंड्रू का, it became very obvious that he had no remorse, and secondly that he had this sense of entitlement, I can get away with anything. I think वहां से उसका डाउनफॉल शुरू हुआ, फिर वहां से लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू किया, और आहिस्ता 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 जो डिफरेंस है, जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है टू मोनार्किकल अथॉरिटी, वो थोड़ी गिरना शुरू हुई है. जब क्वीन एलिजाबेथ का फ्यूनरल चल रहा था, स्कॉटलैंड से प्रोसेशन जा रही थी, तो तभी किसी ने हैकल किया था रॉयल फैमिली को, ओए एंड्रू डिस्गस्टिंग, दैट्स व्हाट हैपेंड. तो आई थिंक कि वहां से फिर एक वो इट्स बीन अ डाउनहिल स्लाइड. Yeah, most definitely. And when we recall that interview, Aneeb, I had watched that interview back then, and it came as a huge shock to me because definitely the palace has its own PR personnel who are there. हर वो चीज जो आपको किसी भी पब्लिक फिगर की तरफ से आ रही होती है, it is actually a constructed narrative that they want to show you. So it is said that his daughters, Eugenie and Beatrice, they suggested their father to go and give that interview, but it was a huge PR failure as well, if we see it from that perspective. अच्छा, उस interview में, as you mentioned, the entitlement, I think it was very evident because not only this, he also said that the last time he met Epstein was in New York because he wanted to end things with him in person to show him who's the leader. And it was the honorable thing to do, as he said. And it was the honorable thing to do. Yeah. So just imagine the kind of entitlement this person had. And obviously, when he was doing something like this, like with Virginia Chirufay, they had photographs together. Yeah. And he denied, उसने कहा था fake है.
और उसमें हम मुनीब ये बात भी देखें ना कि हाउ बिजार इट इज फॉर अ पब्लिक फिगर फॉर प्रिंस ऑफ लाइक एट द टाइम कि वो एक इस तरह की चीज में इन्वॉल्व होता है और फिर एक पिक्चर प्रूफ भी है उसका एग्जिस्ट कर रहा है इट मीन देखिए फोटोग्राफ में तो वो पोस्ट कर रहा था वी सीन दैट फोटोग्राफ so the entitlement definitely is was through the roof. फिर इसके अंदर एक और चीज भी है कि I think that there's one really important incident that we have to mention when it comes to somewhat like the crack, the not the beginning but probably part of the process of developing those cracks in the monarchy was when Prince Harry married Meghan Markle who was half black. She was a divorcee. She was also a little older to Prince And an Harry. So this actress, was no less. and an actress, American actress. And you remember Wallace Simpson ke saath, because she was also an American and she also had been married before. So that was an issue. The reason why he abdicated. Edward the Eighth, he So abdicated, George the Fifth so he son. abdicated because he was not allowed to marry her. But Yeah. now we see that Prince Harry does not only marry Meghan Markle, but it is also one of the most celebrated weddings of that particular decade. और उसके अंदर पे जो वो चीज आती है कि जिसके अंदर मेगन मार्कल वाज ब्रूटली ट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश मीडिया बिकॉज ऑफ हर रेस she also gave this really shattering interview to Oprah Winfrey where she says कि they asked me कि बच्चे का रंग क्या Drunk, होगा yeah. and all of that. I feel कि जो प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल का एग्जिट था इंग्लैंड से that also caused a huge reputational damage to the British royal family because, they were giving interviews right, left, and center. Prince Harry also wrote a book, was doing lots of book tours, और उस सारी में बात फैमिली की ही थी बेसिकली बात तो वो यही कर रहा था ना कि मेरी फैमिली इस तरह And है then the रेसिस्ट है Netflix film, right? The Netflix film, Harry या and Meghan, जिसके अंदर या पे या उन्होंने बल्कि पूरी की पूरी जो इंस्टीट्यूशन है उसकी जो colonial history है उस पे भी emphasize किया. And I remember that in that documentary, Meghan Markle even made light of या made fun of the courtesying to the queen कि ओ मुझे तो आता ही नहीं था वो करना, and so she sort of mocked it, or at least that's how the British media saw it, and particularly the British right-wing media. And to be honest, Munib, even if I do not see it from a right-wing or left-wing perspective, जो वो interviews थे उनके अंदर भी हमें नजर आता था कि there were a few cracks in those interviews if you join the dots. हर इंटरव्यू में एक मुख्तलिफ बात हमारे सामने आती थी तो उस वक्त ये हुआ था कि they were British public, many of them they were critical of Harry and Meghan and they still are. तो थोड़ा सा वो जब होता है ना कि आप किसी एक के खिलाफ होते हैं तो आप दूसरे की जरा वैल्यू बढ़ जाती है तो एक तरफ इस इंसिडेंट की वजह से रॉयल फैमिली की रेपुटेशन को डैमेज हुआ बट एट द सेम टाइम इट आल्सो अर्न्ड देम a lot of sympathy. Sympathy मिल रही थी रॉयल फैमिली क्योंकि Oprah King Charles can't meet his grandkids, the kids haven't seen their cousins and all of those things. वो जो आप relatability की तरफ आ जाते हैं कि चाहे जो भी है but he's also a dad and like he's going through this and he's so heartbroken and now he also is diagnosed with cancer and the family is going through a lot. प्रिंस एंड्रू का केस जब शुरू हुआ था तब भी और recent times में तो और ज्यादा I think it has been a car crash for the British royal family. And I think कि वो जो एक थी ना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ complete deference to submission to authority कि ओ हम लोग इनकी personal life पे नहीं आ सकते इनके साथ बहुत free frank नहीं हो सकते जो British public के among एक ये mass sentiment था I think Harry और Meghan ने वो जो एक शर्म का पर्दा था ना वो थोड़ा गिरा दिया with that Oprah interview and then not just that वो series of interviews and of course the book itself वो जो Spare वाली book लिखी थी and also but I think कि it all came crumbling down with the whole Andrew episode then because Andrew के तो केस में हुआ है कि I think Andrew and Fergie Sarah Ferguson I think they both believed कि you know what let's not talk too much about it let it get buried in the past in the dustbin of history and then we can finally redeem ourselves and move on और उन्होंने बड़ी दफा कोशिश की इस चीज की एंड सैरा फर्गसन ने बहुत ज्यादा चैरिटीज और चैरिटेबल वर्क और चैरिटीज को अपनी पैट्रनेज भी लेंड की ताकि वो अपनी एक अच्छी इमेज बनाए because as far as Sarah Ferguson is concerned उसकी एक sting operation हुआ था 2010 में where she was selling access to Prince Andrew for like 500,000 pounds
और उसके Yeah, she बाद did that. उसने बहुत रोना धोना मचाया कि आई फील रियली सॉरी फॉर दैट वुमन व्हिच आई सीन दैट लीक्ड वीडियो, दैट वाजंट मी, आई मीन इट वाज मी बट इट वाजंट मी। उसने ये बहुत कुछ किया और उसने फिर कहा ओके लेट्स गो फॉर एन इमेज मेकओवर। And in a way, she also provided a soft image to Andrew Mountbatten Windsor, even though they were both divorced. So ये दोनों बिल्कुल बॉनी एंड क्लाइड की एक जोड़ी थी कि आओ आज हम मिलते हैं, दुनिया को मिलकर कॉन्कर करते हैं और लूटते हैं। एंड सो दे वर ऑन दैट लूट स्प्री कि आज हम सारों को चूना लगाएंगे and we are going to make loads of money for each of us. And because Fergie had the advantage of not being a royal anymore, तो वो कमर्शियल डीलिंग्स एंड्रू के बिहाफ पे कर सकती थी, अरेंज कर सकती थी। And this couple, they then got completely mixed up in Epstein's network, so much so that they're at the very center of it. You cannot talk about Epstein's network without first Andrew and Fergie's images coming into your mind. तो आई थिंक कि ये सारा कुछ जो सीज ऑफ इवेंट्स हुए, इन्होंने इतना ज्यादा शेडो कर दिया हर चीज को जो रॉयल फैमिली अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाह रही थी। एंड इवन जो हैरी और मेगन की कंट्रोवर्सी चल रही थी उसको भी ओवर शेडो कर दिया कि नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज कि एक तो ईमेल लीक्स हुई हैं। Sarah Ferguson had been writing emails to Jeffrey Epstein, "You're my brother, marry me," which is a bit odd. And then also she had been writing, "You're a supreme friend of the family, so I never use the P word for you," even though Fergie had said कि जी पीडोफिलिया बड़ी बुरी चीज है, when she was referring to Jeffrey Epstein. और फिर साथ में एंड्रू की पिक्चर्स और रिलीज होती हैं जिसमें ही इज ऑन ऑल फोर्स और एक खातून जो कि शायद बच्ची हो छोटी सी और उसके फेस कवर्ड है उन तस्वीरों में, वो बिल्कुल मुर्दा पड़ी हुई है फ्लोर के ऊपर। यू रियली डोंट नो व्हाट द कॉन्टेक्स्ट इज। एंड कल एक और पिक्चर अब लीक हुई है, बल्कि एक दो पिक्चर्स और लीक हुई हैं जिसमें एक छोटा सा बच्चा है, 2011 का ईयर है, और it's I can't even describe that Yeah. in a decent way, but yeah, so it's something very obscene, and he's playing with a ball which is based on something which is deemed obscene in polite society. So वो वाली भी पिक्चर रिलीज हुई है, एंड पीपल आर आस्किंग कि छोटा बच्चा कौन है इतना वल्नरेबल, और इस बच्चे को क्यों एंड्रू एक्सपोज कर रहा है टू थिंग्स सच एज दिस। So I think this this is not just damning for Andrew and Fergie alone, but the very institution and the very family at whose behest they were able to do it, या जिनके दम पे वो ये कर Yeah. सक रहे थे। एक ऐसी फैमिली जिनकी पावरफुल पोजीशन के दम पे इस तरह से कर सक रहे थे। सो डू यू थिंक कि दिस इज द बिगेस्ट sort of the biggest crisis for the monarchy, even more than what Diana's death or Edward's abdication had done way back in 1936? Do you think this is bigger than any of that? Munib, I don't only think it is the biggest of all the car crashes or biggest of all catastrophes, probably. I don't know if it's appropriate to use the word for the British royal family, but it is also something which is beyond redemption. Mm-hmm. When the abdication of the throne happened in 1936, I guess, Yeah. then you have, like, there comes another brother who has two daughters, and he represents this, this British family, loving family. Who, then when Queen Elizabeth II comes to the throne, she was a huge, uh, I would say a positive figure, a maternal figure for the Stabilizing British force public. as well, right? Yeah, Yeah. yeah. There was never a controversy we heard about her. She was very dedicated towards her service to the institution. I cannot get into the further details, and I think that I'm not even qualified to speak on that. कि what else went, क्योंकि अब तो हमें पता नहीं है कि किसी का भी कुछ कब आ जाएगा। Mm-hmm. लेकिन उसके बाद आप ये देखिए कि अगर डायना का कार क्रैश होता है तो विलियम गेट्स मैरिड। Yeah. People love Kate. Now, this is a young couple who everyone loves, and like they're good looking, they're Popular. pleasant, they're friendly. William is Diana's son, he resembles his mom that everyone loved. So, all of those things. Masala ye hai कि इस वक्त I'm not really sure if this word can be spoken because I know this video is going out on YouTube, but I think this is the word we need to say out. I do not think, or rather think would also be probably not the right word to say. I do not believe there is any redemption for pedophilia. This Mm. is a pedophile. This is a person who is not only a
like who was not only friends with this famous, infamous actually, Yeah. sex offender, but he was, as you already mentioned, कि former Prince Andrew के बगैर तो ये एप्स्टीन फाइल्स हैं ही नामुकम्मल. तो इसको आप किस तरीके से कवर करेंगे? और आप इसके अंदर एक और बात ये देखिए मनी, which is even more disturbing. Fergie even took her daughters to meet Epstein. Yeah. Who does that to their own kids? And she'd also written some very dirty things about her own daughter Eugenie in one of the emails to Epstein, whom she knew was a convicted child sex offender. She had written dash dash weekend. That's what my daughter is out on. So she was actually divulging details of her own daughter's private life to this creep, whom she knew to be a creep, whom the whole world by then knew to be a creep. So I think एक वो वाला factor है. But then I've been seeing some videos जिसके अंदर के नजर आ रहा है कि Queen Camilla is out on one of her public engagements and King Charles is out on various public engagements and they're being heckled left, right, and center. कि what would you like to say about Andrew? What would you like to say about your brother? He's been arrested, Your Majesty. इतने इस तरह से बात कर रहे हैं ना जिस तरह हम लोग वो चलते फिरते करते हैं ओए अरे एंड नाउ दे रियली टॉकिंग टू द किंग जिसके कि आप सब्जेक्ट होते थे जिसके कि आप सब्जेक्ट हो जो कि सॉवरेन माना जाता है एंड नाउ दिस इज हाउ आई मीन पीपल आर नाउ फीलिंग इंटाइटल्ड अगेन दैट वर्ड फिगर्स इन आवर कन्वर्सेशन टाइटल पीपल आर नाउ फीलिंग इंटाइटल्ड कि दे कैन रियली स्पीक एंड शाउट आउट एंड येल एट द किंग इन दिस वे which was deemed unimaginable just a few months ago. मैं तो years पे भी नहीं जाऊंगा. So do you think कि वो जो एक पुराना मंत्रा था एलिजाबेथ की रेन में Elizabeth II, when she used to say, never complain, never explain, do you think it's going to work today in 2026? Do you think something as serious as this? When we live in वर्ल्ड जिधर के मी टू हो चुका हुआ है मतलब कि एक वो पूरी मूवमेंट शुरू हुई मी टू टाइम्स अप जिधर अब एक कॉलिंग आउट और एक कैंसिल कल्चर है डू यू थिंक कि चार्ल्स एंड कैमिला जस्ट वेविंग एट द पब्लिक एंड बीइंग द good the good uncle and the good aunt that the nation wanted, do you think it's going to work? Yeah, they will need to say more than what they're saying right now. Abhi to सिर्फ ये कह रहे हैं we are very concerned, we're very concerned. Neutral language, not naming anybody. Do you think neutrality is going to get them very far in this day and age in a post Me Too environment? Never. Never. I think that this is not 1970s anymore. This is not even 1990s anymore. We are living in the age when people are aware that their taxes run the monarchy. अभी तो हम उन्हीं colonialism वगैरह की तरफ तो जा ही नहीं रहे वहां पे तो हमारा एक personal beef है. Like, because the coloniality still exists. Colonialism has ended definitely in India. And but it does not mean that the coloniality has ended. We are still paying the price of it. It's We after are effects. still a part of it. They are alive, yeah. Yeah, of course they're alive, which is why now we do not use the term post-colonial, we use the term decolonial. तो उस तरफ तो अभी हम जा ही नहीं रहे लेकिन अगर हम सिर्फ ब्रिटिश पब्लिक की भी बात करें दे आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स नाउ दे आर अवेयर देयर टैक्सेस रन द मोनार्की यही वजह है कि हर साल रिपोर्ट आती है जिसमें बताया जाता है कि किस चीज के ऊपर ब्रिटिश रॉयल फैमिली ने कितना खर्चा किया. Do you think something like this used to happen probably 40-50 years ago? I'm not aware of. I have no idea. And now, if it ever happened. they're very interesting that you raise this point because now there are calls for royal wills to be made public. Because ब्रिटेन के अंदर क्या होता है ना कि जो आप कोई वसीयत बना रहे हो दैट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड एवरीबडी हैज द राइट टू एक्सेस दैट बट रॉयल फैमिली फॉर एग्जांपल अभी ये जब प्रिंस फिलिप मरा है ड्यूक ऑफ एडिनबरा 2021 में एब्सोल्यूट सीक्रेसी यू डोंट नो कि उसने विल के अंदर क्या लिखा था. So now there are calls being made कि we want कि जो ये लोग wills बनाते हैं किसको क्या property छोड़ के जा रहे हैं this should also be made public and I think it is going to be made public very soon because if you आपने एक दरवाजा खोल दिया है where a senior member a working member of royal family for many years and somebody who again as you said longest reigning monarch का बेटा था current reigning monarch का सगा भाई है आप उसको अगर जेल में डाल रहे हो बिल्कुल किसी टॉम डिक एंड हैरी की तरह अब एक टॉम डिक एंड हैरी को एंड्रू ने भी ज्वाइन कर लिया है तो फिर तो आई थिंक कि like any of the Tom Dick and Harry if they die and they leave their will तो then public can access that public can also access Prince Philip's will Queen Elizabeth's will so I think कि वो वाली conversations अब होना शुरू हो जाएंगी which are going to be deemed very
uncomfortable by the firm. What Diana also used to say, the firm. Yeah, most definitely. और एक और बात ये भी है मुनीब कि we also should not forget the Commonwealth. We are a part of the Commonwealth. Yeah, There ceremonially. are Yeah. many countries in the world that are part of the Commonwealth. So we now also have a say in this particular matter. आप आज से कुछ अर्सा पहले तक ये इमेजिन ही नहीं कर सकते थे कि somebody would be calling out king um, in the streets of Australia. So so King Charles was actually visiting Australia and he was called out. बिकॉज अब लोगों के अंदर कॉलोनियलिज्म की अवेयरनेस आ रही है एक्सट्रैक्टिव कॉलोनीज में भी कॉलोनियलिज्म की अवेयरनेस तो चले है ही क्योंकि हमने तो एक उसकी बहुत ही और तरह की फॉर्म देखी है वी हैव बीन टॉट दैट व्हाट कॉलोनियलिज्म वाज बट इवन इन द सेटलर कॉलोनीज now there are these conversations against these people like I have spent a good chunk of my time in Australia. और वहां पे मैंने जिस तरीके से ब्रिटिश रॉयल फैमिली के अगेंस्ट बातें होती सुनी है जहां पे ये बात कही जाती है कि why are our taxes going to the Commonwealth? Why don't we separate from that? So like, it is a huge conversation and this global conversation can also bring the monarchy down and I feel कि अगर monarchy कंप्लीटली खत्म नहीं भी होगी कि बिल्कुल ये आप डिसमैंटल करने वाला अगर नहीं भी होगा it would be reduced to merely a symbol like tourism. I think कि इस खत्म नहीं भी होती, there is going to be much more transparency, there's going to be much more accountability, and there's going to be much more pressure to keep justifying and continually justify why do we have you as the ceremonial head of state. आई थिंक वो वाला एक प्रेशर जरूर बिल्डअप हो रहा है. व्हाट आई वांट टू नो फ्रॉम यू इज, एक तो बात शुरू हो गई है एंड दिस इज अगेन गोइंग टू बी अनप्रेसिडेंटेड बाय द वे एंड इट्स नॉट अ वेरी रिमोट पॉसिबिलिटी आइदर. बात ये चल रही है इस वक्त एज वी टॉकिंग कि शुड एंड्रू माउंटबेटन विंडसर even be in the line of succession because he's eighth in the line to the succession to the throne. तो एक तो वो वाली बात आती है. Should he even, by virtue of his being a close blood relation of a previous reigning monarch and a current reigning monarch, should he even be entitled to become a king in the eventuality कि जी अगर वो वक्त आ जाता है कि एट्थ इन लाइन टू थ्रोन को किंग बनना पड़ जाए, should he even be in the line of succession to the throne? दूसरी इसी से related, what are your views on the British monarchy? बहुत लोग कहते हैं कि abolish हो जाना चाहिए. इस टॉपिक के ऊपर what would you say? These two things. Speaking of, I'll answer the first part of your question. और वो ये बात है कि you asked कि कि ऐसा क्या होगा कि he would be removed from the line of succession because by the accident of birth he happens to be eighth in the line of succession at the moment. I think it's very likely to happen. It's very likely to happen. And we should also remember that King Charles has never been fond of Andrew. He's always been thinking about slimming down the monarchy. और अगर हम एक और चीज देखें, citing Prince Harry's book, Andrew Mountbatten Windsor was always a spare. And we know that the spare and the heir do not, they're not the best of friends. So King Charles always had this in mind. He was not very fond of Andrew, ever. And now he actually has a reason to do it. और इस तरीके से अगर वो ये चीज करते हैं, obviously it is going to win them the brownie points in the eyes of the British public. And and also fulfill the king's wish. I think part of the rivalry is also stems from the fact that everybody knows Andrew was always Elizabeth's favorite child out of all four children. Exactly. The second question that you asked, and I would want you to elaborate on it a bit further about what I think of the monarchy. In which sense? In the sense that, मुझे याद है, and not boasting, but it really actually happened. So really speaking from personal experience. So 2 years ago, it was March. तो मैं गया Commonwealth Service एक होती है every March, अभी भी होने लगी है Westminster Abbey में. So I had a pass to go there in 2024. मैं जब enter कर रहा था Westminster Abbey तो मैंने दूसरी side of the road के ऊपर देखा protesters खड़े हुए थे. Organization एक है जिसका नाम है Republic. उन्होंने पकड़े हुए थे
placards and banners जिसके ऊपर लिखा हुआ था not my king, down with the crown, abolish करो monarchy को, ये सारी बातें लिखी हुई थी. So I realized कि okay, अगर इस साइड पे कुछ लोग हैं जो कि अंदर जा रहे हैं, वो ट्रेडिशनल तरीके से सर्विस अटेंड कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो कि एक्चुअली कंप्लीटली उस चीज को नापसंद करते हैं, हर वो चीज जो कि कॉमनवेल्थ को रिप्रेजेंट करती है. कॉमनवेल्थ के जो टॉप के ऊपर एक वो फिगर बैठा है ब्रिटिश मोनार्क का, द क्राउन एज इट्स कॉल्ड, उसको नापसंद करती है. एंड कहीं ना कहीं आई सी के जो एंड्रू का अभी अरेस्ट हुआ है, इसके चलते तो दे आर फीलिंग मच मोर एम्पावर्ड. ये जो रिपब्लिक ऑर्गेनाइजेशन का मैंने नाम बताया, इसका चीफ का नाम है ग्राहम स्मिथ. एंड अब वो राइट लेफ्ट एंड सेंटर ब्रिटिश मीडिया पे आके इंटरव्यूज दे रहे हैं, व्हेन ही यूज्ड टू बी ऑन द फ्रिंजेस प्रीवियसली. सो डू यू थिंक कि ये जो abolish the monarchy, ये वाली जो एक मूवमेंट काफी देर से ब्रू कर रही थी और अब जरा ज्यादा मेन स्ट्रीम हो रही है, डू यू थिंक के नंबर वन, व्हाट्स योर पर्सनल व्यू ऑन दिस? डू यू आल्सो अग्री विद दीस पीपल जब ये कहते हैं कि जी मोनार्की तो डू अवे कर दो, हमें इलेक्टेड प्रेसिडेंट चाहिए यूके के अंदर अब और कॉमनवेल्थ के लिए? डू यू अग्री विद दैट एंड डू यू थिंक के दिस इज a real possibility ke finally they will now inch closer towards having an elected head of state? Muneeb, to be honest, I'm not going to mince my words. I definitely stand on the other side of the fence. And what's that side? Or the side that is against the monarchy. अच्छा. I definitely stand on that side. अच्छा. उसकी वजह ये है कि मुझे ये लगता है कि the power always belongs to the people. किसी भी टैक्स पेयर का ये हक है कि वो इस बात का फैसला करे कि क्या मेरा टैक्स किसी के कपड़े, जूते और पैलेसेस पे जाना चाहिए कि नहीं. It is for the British public to decide what good monarchy is bringing to Britain, except for these pretty tours and these charities and all these things. And we should also not forget, although I'm not an economist, from whatever little I know, and is that Britain is also going through a financial recession. Yeah, cost of living crisis, as they call it. Yeah. The cost of living crisis is really high, even in rich cities like London at the moment. The homelessness has been on the rise like never before. And then you have these people who are living in these palaces, who are connecting and making friends with these sex offenders, who are so entitled that they think and believe that they are above the law. Do you think this can sustain or this should sustain in a condition like that? You know what? इसकी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स कुछ जो मोनार्किस्ट दे सकते हैं, देना चाहेंगे. सबसे पहले तो कहेंगे, so that is why okay fine, it's too little too late. But the fact that Andrew has been arrested is not the end of it. It's just the very beginning, which means that the monarchy is adapting to the times. So it's an institution which has learned over a period of time, as you even said, initially evolved, कि किस तरह से adapt करते हैं, और adapt करेगी तो survive करेगी. Because, hey, King Charles is not a bad man. I mean, he's also had a rough patch or two in the past, but he's learned from it and he's become even stronger now. And so वो अपने भाई का भी साथ नहीं दे रहा, उसको शील्ड नहीं कर रहा पुलिस से, उसने स्टेटमेंट भी इशू की. And King Charles, hey, he's much better than all these politicians like Nigel Farage, politicians like, even अगर हम यूएसए के प्रेसिडेंट को देख लें, दुनिया भर में देखें, the right wing इतना ज्यादा फैल रहा है, you've got a King Charles who, okay, he's unelected, but where politicians divide people across borders and even within the UK, उनके जो अपने conservative versus reform versus अब restore Britain आ गया है, तो it's the king who is a unifying force, and by extension even the royal family, who bring the nation together in their celebrations and all the pomp and pageantry. जब वो अभी 6 मई 2023 को coronation ceremony हुई थी, the nation was brought together. So वो divisions को heal करते हैं, because ये वही monarch है जो कि इफ्तार functions के ऊपर भी जाता है रमजान के महीने में, और हैनुका की celebrations होती है उधर भी जाता है. So और ये वही monarch है जो कि विंडसर कासिल में इफ्तार रखवाता है, और अजान चलती है विंडसर कासिल के अंदर एक ऐसे वक्त पे you have got people like Nigel Farage, Suella Braverman, Kemi Badenoch. तो ये unelected head of state तो elected heads of state या elected politicians और MP से ज्यादा democratic लगता है. How would you answer that? Well, Muneeb, I also think, and I would see this thing from the celebrity culture perspective as well. And I'm seeing that as an academic. I'm not seeing that as somebody who
is probably coming from a PR perspective. Because royalty is now also a celebrity. Oh, They're absolutely. celebrated. They're celebrated. They follow a certain narrative, to construct a certain narrative. The narrative has to evolve and adapt to the needs of the time, as it has. When it comes to the British monarchy, हाँ कुछ अर्सा पहले आप क्या सोच सकते थे कि विंडसर कैसल में अजान होगी and all of that. But again, my opinion is that we need to understand how power relations work. We need to conceptualize how this particularly brings change to the life of a common person Hmm. who's homeless Hmm. and is unable to feed him or herself despite having a certain income. And by the way, the homelessness that I'm talking about, which is on the highest rise in London at the moment, Hmm. is not only for people, जिस तरह हम वैसे imagine करते हैं ना कि homeless लोग वो होंगे, people who don't work and people who are only on drugs and this and that. No. It's also people who are working. The cost of living crisis is so high. मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को इस बात पे बहला सकते हैं कि अजान चल गई. देखिए ब्रिटेन में मुस्लिम्स की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है. Hmm. The king also needs their favor, na? But Transactionally. वैसे we know that the king has a particular fascination for the Islamic tradition, जिसकी वजह से राइट विंग मीडिया और जीबी न्यूज के ऊपर किंग को बहुत ज्यादा, बाय द वे लास्ट ईयर रमजान के महीने में किंग को बहुत ज्यादा स्मेयर किया था उनकी मीडिया ने कि तुम चर्च ऑफ इंग्लैंड के हेड होकर तुम एक्चुअली मुस्लिम्स को केटर कर रहे हो. एंड दैट्स एक्चुअली यू नो व्हाट आई रियली इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग कि ये जो हम देख रहे हैं अभी, तो अमेरिका और ट्रम्प को भूल जा, ऑफ कोर्स ट्रम्प से इनको इंकरेजमेंट मिल रही है. ब्रिटेन के अंदर जितना फार राइट ने इस वक्त पब्लिक इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया है. यू मेंशन्ड होमलेसनेस, एंड ठीक है, इवन अगर परफॉर्मेटिवली ही सही, दिखावे के लिए सही, झूठा ही सही, अगर किंग चार्ल्स या कैमिला हम लोग को नजर आता है कि होमलेस लोगों के लिए चैरिटीज को पेट्रोनेज लेंड करते हैं या इनिशिएटिव्स लेते हैं, चलो ऊपर ऊपर से कर तो रहे हैं. एंड देन यू गॉट people who were elected to power and elected to some of the highest offices like Suella Braverman. So when she was in 2023, when she was an elected MP, she was the Home Secretary, for goodness sake, she was leading the Home Office. उसने ये statement दी थी, I think homelessness is a choice. Homelessness is a lifestyle choice. So we're going to Yeah, get them off the sure. streets. Now Sure. this is an elected person, Sure. democratically elected person saying this. It's a lifestyle choice. मनी रिस्पेक्ट ये वाली बात भी हो जाती है ना कि देन ओके देन इट्स लेसर इविल क्योंकि आपकी बाकी चॉइसेस इतनी बुरी हैं. And it also gives rise to this question in my mind at the moment that probably there is a need for a third force in politics. A third force that is coming from people, a third force that represents people, a third force that believes in the progressive ideals, a third force that does not believe in the status quo but rather abolishes all the all the shackles which keep certain people billionaires and certain people homeless. अच्छा अगर homeless होना choice है, which I think is a structural failure, फिर तो billionaire होना भी choice है. तो मुनीब आप और मैं क्यों नहीं ये choice करते? Why don't we become billionaires? Because we are not as good and talented as Bill Gates, we are not as good and talented as Yeah. Bezos or Elon Musk. So Yeah. na ki sirf they're Yeah. morally superior to us, but actually they've got all the virtues which capitalism is going to reward anyway. So perhaps we might possess those qualities to a certain extent. That is why we're sitting in comfortable air-conditioned rooms, but perhaps not enough to be billionaires like them. So yeah, but Yeah, so choice is a privilege. Choice is a privilege. मैं आज ही एक पॉडकास्ट सुन रही थी जिसमें उसने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि if you wake up every morning and start thinking what should I have for breakfast today, you come from a place of privilege. So I think that it is also important to understand capitalism as a bigger system of oppression. As a bigger system of oppression that has given rise to these inequalities that we have in the world at the moment, that on one hand you have billionaires and on the other hand you have people who are living under the bridges. And in the freezing cold of London do not even have warm blankets. देखिए एक और बात मुनीब जो मुझे
when I moved to Lahore, मैंने इस बात को मेरे जहन में ये बात आई, and I often think of it. Muneeb, as you travel to London more frequently than I do, and I think that you can also give a better idea on this. मुझे बताइए लाहौर में पोर्शन साइजेस ज्यादा हैं खाने के या लंदन में? And I'm not talking about fine dining, by the way. अच्छा, in my personal experience, Talking a about lot regular depends food. on what place you're going to. But हाँ, लाहौर में क्या होता है कि कुछ और हो ना हो, खाना वाफिर है. It's part of the खाना culture. है, हाँ. खाना है। अब देखिए ना कि लंदन में now you have to hear these news where people are stealing food. Hmm. Why do people have to steal food in a first world country and then also have to be penalized for that? It means there's not enough food for people. All right. लेकिन it's something very interesting then comes to mind. इसका कारण क्या है? इसकी क्या वजह है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है? बिकॉज आजकल जो मैं रेट्रिक सुन रहा हूँ ब्रिटिश पॉलिटिशियंस का, और मैं सिर्फ फार राइट की बात नहीं कर रहा, वो तो ये कह ही रहे हैं, लेकिन जो इवन सो कॉल्ड सेंटर राइट मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस है, लाइक कंजर्वेटिव पार्टी, इवन लेबर पार्टी, उनकी तोपों का इशारा इमिग्रेंट्स के टूवर्ड्स है, एंड पर्टिकुलरली इमिग्रेंट्स में भी जो सबसे आगे खड़े हुए मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं, एंड वो कहते हैं जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस तुम लोगों के साथ हो रहा है, इसकी वजह क्या है? वो जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स आ रहे हैं ना, अपना फॉरेन कल्चर लेकर आ रहे हैं हमारी लैंड्स में, वो इसकी वजह है। हम उनको निकालेंगे, उनको ये डाइवर्सिटी और इक्वालिटी और इंक्लूसिविटी वाले जो कोटाज हैं उनको देना बंद करेंगे, देखो तुम लोगों के पास वाफिर पैसा होगा। These people will never talk about, they will never talk about taxing the rich and the billionaires and the corporate gurus and the tech billionaires, नहीं, उसकी बात नहीं करेंगे। उनको रेगुलेट किया जाए, वो जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉज कर रहे हैं उसकी कभी बात नहीं करेंगे, बल्कि कहेंगे कि डीरेगुलराइज करो प्राइवेट सेक्टर को और कमर्शियल सेक्टर को, एंड एट द सेम टाइम दे बी सेइंग इन इमिग्रेंट्स को बाहर निकाल दो, ये जो ग्रूमिंग गैंग्स इधर हमारे मुल्कों में लेकर आते हैं, देखना सारी चीजें मैजिकली ठीक हो जाएंगी। डू यू रियली थिंक कि इमिग्रेंट्स एंड मुस्लिम इमिग्रेंट्स को जब निकाल दिया जाएगा वेस्टर्न कंट्री से तो उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस सॉल्व हो जाएगा और जॉबलेस को जॉब मिल जाएगी, होमलेस को होम मिल जाएगा, सब सेट हो जाएंगे? मुनीब, ये वही वाली बात है कि पाकिस्तान में जिस तरह एक्चुअली आई हैव कम बैक आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, तो मुझे वो कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं वो ज्यादा फील भी होते हैं। ये वही वाली बात है जैसे आप हर चीज नजर पे डाल देते हैं, बच्चे को नजर लग गई इसलिए उसको ठंड लगी हुई, नॉट बिकॉज देयर इज अ वायरस, not because you do not have the access to clean air. ठीक है, not because probably we have failed at giving our children the basic necessities of life, which include clean air above all. तो ये वो वाली बात है, जब आप असल मसले से नजर चुराना चाह रहे होते हैं ना, तो फिर आप इसी तरह करके छोटी छोटी चीजों पे करते हैं। ये वही वाली बात है कि आपके घर में ग्लास पड़ा हुआ होगा, एक आपकी अम्मी का हाथ लगा उस पर, ग्लास टूट गया। अब आपकी अम्मी पोजीशन ऑफ पावर में है घर में, तो वो ये कहेंगे ये ग्लास जिसने यहाँ पे रखा है मुझे उसका बताओ, ये उसकी वजह से टूटा। So basically, you are turning your eyes away from the fall of capitalism, from the imminent fall of capitalism. हम जो देख रहे हैं वो बेसिकली कैपिटलिज्म के सम्राट हैं, लेकिन उसकी तरफ नजर नहीं दौड़ानी इन्होंने, क्योंकि अगर उसकी तरफ नजर दौड़ाएंगे तो पीपल इन पावर विल नॉट लाइक इट गोज अगेंस्ट देयर फ्रेमवर्क ना, इट गोज लाइक वो तो बेनिफिशियरीज हैं सिस्टम के, तो इसलिए इमिग्रेंट्स को कह दो, इसीलिए ये कह दो कि ये ग्लास किसने यहाँ पे रखा था। सो कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ अभी रिसेंटली, एटलीस्ट यूके के अंदर राइट विंग से लड़ाई हो गई है, which is a lot of fun actually to watch, and it's being unfolded live stream, and I'm totally hooked onto my laptop screen, watching अच्छा अभी कौन क्या कहेगा। So वहाँ इस तरह से है कि नाइजल फराज की जो रिफॉर्म पार्टी है, which is far right, which talks about scrapping the European Convention on Human Rights, हम ह्यूमन राइट्स एक्ट खत्म कर देंगे, इमिग्रेंट्स और स्मॉल बोट्स को नहीं आने देंगे, रवेंडा भेजेंगे उनको, और हम रीमाइग्रेशन करेंगे। So it means we are going to strip so many millions of immigrants, i.e. Muslims, from Britain, and we will send them to wherever we want to throw them away. और इस तरह से हमारी एक ज्यादा ऑल वाइट पॉपुलेशन बनेगी। अब नाइजल फराज ये बातें कर रहा था, कह रहा था, एंड येट ब्रिटिश फार राइट को लग रहा था नो दिस इज नॉट इनफ, स्टिल नॉट इनफ, बिकॉज इसके मुंह से अभी फिसली एक बात इसने गलती से कहीं मान ली है कि मुसलमान इमिग्रेंट्स इंसान है, इसने अभी अभी कहीं कहा है।
कि they are human beings. Oh. Crap. So इसीलिए something much more radical is needed. तो एक रूपर्ट लो नाम के एक साहब हैं, तो उन्होंने अपनी रिस्टोर ब्रिटेन नाम की पार्टी लॉन्च कर दी और उसने कहा है कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ because I'm going to save every single British woman and every single British child from these Muslim Pakistani immigrants who've been running their screaming camps. उसने ये चीज अनाउंस की है. मैं ये देख रहा था यार, अभी अभी जेफरी एप्स्टीन का स्कैंडल, हर किसी की टेंशन उधर गई हुई है. तेरे मुंह से एक दफा ये स्लिप नहीं किया ये नाम एप्स्टीन, मैंने सुना नहीं. तुम दोनों की बात करो ना, फिर सबकी बात करो. मैं कहता हूँ सबकी बोले खोलो. पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स को मैं तो साउथ एशियन गैंग नहीं कहता, मैं उसको यूके ग्रूमिंग गैंग भी नहीं कहता. मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं मानता हूँ वो पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग है. एटलीस्ट ओल्डन टेलफर्ड टाउन्स में जो ये हरकतें कर रहे थे, जो ये गैंग्स आए थे, वो थे ही पाकिस्तान ऑरिजिन. मैं तो मानता हूँ भैया, तो तुम भी ऐसा करो, तुम एप्स्टीन का भी तो नाम लो, तो वहां क्यों तुम्हारी ज़बान को लगाम लग जाता है. सो डू यू थिंक व्हेन दे से कि वी केयर अ लॉट अबाउट आवर वुमेन, आवर चिल्ड्रन, और हम जूइश लोगों के बारे में बहुत केयर करते हैं, हम एंटी सेमिटिज्म को खत्म करना चाहते हैं, एंड एट द सेम टाइम नाइजल फराज के जो पुराने क्लास फेलोज है वो कहते हैं कि जब हम स्कूल में इकट्ठे होते थे तो ये गैस देम ऑल के नारे लगाया करता था हमारे खिलाफ, हम जूइश स्टूडेंट्स के खिलाफ. डू यू थिंक जब ये कहते हैं कि हम एंटी सेमिटिज्म को, मिसोजिनी को और पीडोफिलिया को प्रिवेंट करने के लिए मुस्लिम इमिग्रेंट्स के खिलाफ बात कर रहे हैं, do you think they are saying it genuinely? They really care? Very interesting point, Maneeb. जो आपने ये वाली बात कही है ना कि if you really care about human rights, if you really care about the rights of the vulnerable, then everyone should be under the same bracket ना. फिर वो एक ही लेंस है जो सबके लिए इस्तेमाल करें. मरिया लगून्स ने 2010 में एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दिया था हमें, कॉलोनियलिटी ऑफ जेंडर का. और उन्होंने ये कहा था, पहले उन्होंने ये बात बोली थी कि ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ने हमें जिस तरह का, actually it wasn't about British colonialism, I use the term British colonialism more often, but we know that colonialism did not only come from Britain. She used this term for colonialism at large कि colonialism ने system of gender introduce करवाया. और वो जेंडर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें एक हायरार्की क्रिएट की गई where men were deemed superior to women and all of that. और उससे पहले इंडिजिनस सोसाइटीज में इस तरह का जेंडर सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था जिसमें आप किसी को टारगेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्सुअलिटी और व्हाटसोएवर. जब उनकी स्टडी के ऊपर क्रिटिसिज्म आया तो उन्होंने इस चीज को फर्दर एलैबोरेट किया, एंड आई एम सच अ ह्यूज फैन ऑफ दैट एसे ऑफ हर, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि जी कॉलोनियलिटी ऑफ जेंडर का मतलब ये है कि जो वाइट औरतें हैं कॉलोनियलिज्म में या कॉलोनियलिटी के हिसाब से भी अभी तक भी, जो खवातीन इंडिजिनस कल्चर से आती हैं, जो खवातीन सब्जेक्ट्स हैं, और हम इसको उस तरह भी कर सकते हैं, पावर रिलेशंस के हिसाब से भी इस चीज को देख सकते हैं, दे वर डिह्यूमनाइज्ड. तो अगर आप एक मिसाल के तौर पे अगर आप एक ब्रितानवी औरत को भी ऑप्रेस करें, जो कि ऑब्वियसली पेट्रियार्की डिड एंड स्टिल एग्जिस्ट्स इन ब्रिटेन, लेकिन अगर कंपैरिजन आ जाएगा ना, इफ यू हैव टू सेव अ ब्रिटिश वुमन और यू हैव टू सेव समबडी हु इज वल्नरेबल और कम्स फ्रॉम कम्स फ्रॉम अ कॉलोनी, तो आप ब्रिटिश औरत सेव करेंगे. ये उन विक्टिम्स की बात नहीं करेंगे जिन्होंने इन आइलैंड्स के ऊपर, जिन बच्चों ने जो इस सेक्स ट्रैफिकिंग का पार्ट बने, जिनकी जिंदगियां खत्म हुई, जिनकी जिंदगियां तबाह हुई, ये उनके बारे में बात नहीं करेंगे. ये उनके बारे में बात करेंगे जो पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स के जरिए जिनके साथ जो हुआ वो हुआ. And like, both you and I, by no means we are trivializing that. Yeah. What's wrong is wrong. Yeah. And this is something which we cannot even place on the gray scale. This is black and white. All right. तो इसमें ये बड़ी बात भी है. और फिर मुझे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है एप्स्टीन फाइल्स के बारे में, माइनस दीपक चोपड़ा. बट आप ये देखिए कि इसके अंदर कितने मुसलमान हैं. दीपक चोपड़ा इज नॉट मुस्लिम ऑब्वियसली, बट लाइक पर्सन ऑफ कलर. कितने मुसलमान हैं इसमें? नून लीग सपोर्टर्स आ जाएंगे बीच में और कहेंगे इमरान खान, और मैं उन लोगों को जवाब दूंगा कि एक्चुअली एप्स्टीन फाइल्स इमरान खान को विंडिकेट करती हैं rather than implicate. Exactly. Right? So no, Exactly. I can't think Exactly. I can only think of the Clintons. I can think of Peter Mendelsohn. I can think of Noam Chomsky and all these, even Stephen Hawking, these people that we used to Stephen, of all people, Stephen Hawking, like, So that's what I mean. Stephen Hawking, like, ये अच्छा, so but ये जो
थिंग दैट यू जस्ट सेड ना कि कितने को मुसलमान नजर आ रहे हैं. अब इंटरेस्टिंग बात ये है, कल्चर वॉर्स अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में चल रही है इस वक्त, द होल इमिग्रेंट वर्सेस राइट विंग, लेफ्ट विंग वर्सेस ऑल दीज एंटी मुस्लिम्स, वो वहां चल रही है कल्चर वॉर, तो कल्चर वॉर इधर भी चल रही है पाकिस्तान में, और इधर Oh, भी एक बड़े definitely. अजीब तरीके से वेपनाइज किया गया है एप्स्टीन स्कैंडल को. सो मैं देखता हूँ पाकिस्तान के अंदर जो हमारा रिलीजियस राइट विंग, जो मजहबी दाएं बाजू का तबका है, वो भी कह रहा है ये कल्चर है तुम सेकुलर्स का, ये कल्चर है तुम लिबरल्स का, ये तुम लाना चाहते हो इधर. हमारे मुल्क के अंदर छोटी छोटी बच्चियां, हमारे मुल्क के अंदर छोटे छोटे बच्चे सेफ ना हो, तुम ये कल्चर लाना चाहते हो, देसी लिबरल्स, देसी सेकुलर्स. एप्स्टीन वाला कल्चर ही तुम्हारा सेकुलर कल्चर है दरअसल. और फिर उसी ब्रेथ में मौलाना फजल रहमान खड़े होते हैं पार्लियामेंट में और वो कहते हैं कि मैं छोटे छोटे 16 साल के, 13 साल के, 12 साल के बच्चियों की शादियां करवाऊंगा. और उन्हीं का एक सेनेटर हमदुल्ला है, उन्हीं की पार्टी का, वो ये कहता है कि मैं बदला लेने के लिए, अगर ये बिल पास हो गया, जो कि मुझे पता चला है कि अभी 23rd को पंजाब असेंबली में पेश किया जाएगा, which raises the age for marriage for girls in Pakistan, in Punjab and Islamabad capital territory to 18. उस वाले बिल को अगर लॉ में तब्दील कर दिया गया, तो सेनेटर हमदुल्ला ने कहा है JUIF के कि फिर मैं बदले में 16 साल की बच्चियों के साथ शादी करके दिखाऊंगा. सो व्हाट ही रियली मीन्स टू से इज कि वो लड़की की कोई एजेंसी नहीं है, 16 साल की बच्ची की जिसके साथ शादी करूंगा, उसकी तो कोई एजेंसी नहीं है, बस उसको तो उठाना है और बस उसके साथ शादी करनी है. तो मुझे तो इतना डिफरेंस नजर नहीं आ रहा उस सेकुलर कल्चर को जिसको ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और फिर अपना जो इनका कंजर्वेटिव कल्चर है जिसको कि ये कहते हैं हम उस कल्चर के चलते छोटी बच्चे के साथ शादी करना चाहते हैं. मुझे तो नहीं कोई इतना फर्क नजर आ रहा, बिकॉज एक्चुअली व्हाट रियली स्केयर्स मी इज all over the world now, the most powerful people, whether they come from religious background or completely secular backgrounds, we are actually being led and governed by pedophiles and men in power, and they are all pedophiles, and that's the kind of world that is being shaped by these pedophiles. Do you agree with that? Totally. And how unfortunate it is. Munib, how unfortunate it is that on this, I don't know when this program would be posted on your channel. लेकिन इस वक्त जब हम shoot कर रहे हैं, तो it's a Saturday morning when we are having this discussion. रमजान का भी महीना है, जो कि यहाँ पे हमारे यहाँ एक बड़ा एक होली मंथ कंसिडर किया जाता है, जिसमें it is meant to, like, we're meant to cleanse our souls, and it has a huge spiritual significance and everything. And it is so unfortunate that today it's the weather is beautiful today, by the way, क्योंकि ना ज़्यादा सर्दी है, सर्दी almost खत्म हो चुकी है, गर्मी भी नहीं है, रमजान का महीना है. So all good things that you would possibly imagine. And this is what we are discussing at the moment. This is the conclusion that we have come to after a rational, logical discussion. The world is being led by people in power, predominantly men, who have no sympathy, who have no compassion for the vulnerable, whether those are children, whether those are women, whether those are people from ethnic minorities, as we see what's happening to immigrants, whether it's US or it's Britain or any other part of the world, Australia also at the moment, whether those are people with disabilities. I think that's very important कि किस तरीके से उनके साथ क्या क्या होता है. आप इसकी बात करते हैं, आप इसको कंडेम कर रहे हैं, अगर इस चीज आप ये कह रहे हैं कि हाँ जी यही वेस्टर्न कल्चर है, आप पाकिस्तान के प्रोग्रेसिव लोगों को, साउथ एशियन प्रोग्रेसिव लोगों को आप ये ताना दे रहे हैं कि अच्छा तुम ये वैल्यूज लेके आना चाहते हो, खुदा का वास्ता हम पीडोफीलिया लेके नहीं आना चाहते, ये वेस्टर्न वैल्यूज नहीं है. व्हाट वी टॉक अबाउट आर द यूनिवर्सल वैल्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स व्हिच हैव टू बी equal, irrespective of the gender, class, race, creed you come from. हम उसकी बात करते हैं. और जाहिर बात है इनके लिए तो इसको वो वेस्ट की वजह से वो करके, क्योंकि वो गोरी चमड़ी के लोग हैं, तो आप उनको उस तरह करके विलिफाई जरूर करेंगे. लेकिन जहां पे ये बात भूल रहे हैं कि वहां पे उस चीज को कंडेम किया जा रहा है कि ये गलत बात है. पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स जो चीजें कर रहे हैं, जो एप्स्टीन फाइल्स में हुआ, वो सारा कुछ आपने तो नॉर्मलाइज किया होगा. Munib, you and I, we probably come from this, like, really small bubble of this country. Both you and I, we are very privileged people. Yeah. Whether it comes to, like, the financial privilege, whether it comes to the social privilege or the intellectual privilege,
the privilege of being able to have this conversation at the moment. हम वो लोग हैं और हमारे इर्द गिर्द जाहिर बात है मोस्टली लोग पढ़े लिखे लोग हैं. आपने अपने इर्द गिर्द कोई इस तरह की एग्जांपल्स नहीं देखी हैं जिसमें गर्ल्स हु वर अंडर 18 वर मैरिड ऑफ? आई हैव बीन टू दोस वेडिंग्स एक्चुअली. हमारे बबल में भी इस तरह की शादियां एग्जिस्ट करती हैं. हमारे बबल में भी इसको नॉर्मलाइज किया जाता है. ये लोग अगर बात करते हैं इस बारे में तो बात करें अपने मदरसा कल्चर के बारे में भी बात करें. वो कसूर के कहेंगे उन क्या है बच्चों के बारे में मदरसा भी में, क्या हो बात रहा है, करें. वो कहेंगे क्या हो रहा है मदरसे में, क्या कौन सा मदरसा कल्चर. नहीं नहीं कुछ नहीं. सॉरी. मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ, ये कोई आइसोलेटेड इंस्टेंस नहीं है, बट हाँ जी, मेरा एक दोस्त होता था और वो बचपन में मदरसे में था और उसने उसके बाद मदरसे से होने के बाद हम लोगों को ओ लेवल में ज्वाइन किया. And very quietish, very aloof from everybody, had a lot of depth, and that's why I think I became friends with him. But later on in life, when this person was more than 30 years old, तो तब इसने मुझे रिकाउंट करके बताया मदरसा में होता क्या था. And he just told me about the overly sexualized environment, जिधर के अभी तो आप भूल जाओ जो टीचर होते थे, उस्ताद साहब होते थे, वहां तो आप भूल जाओ, जो लड़के भी थे, सीनियर लड़के, वो बुली करते थे और सेक्सुअली बुली करते थे. इसने मुझे ये बातें बताई थी. एंड मुझे ये पता था कि ये सिर्फ एक के साथ नहीं हुआ, ये इंस्टीट्यूशनल है, ये सिस्टेमिक है. सो ये बातें तो मैं खूब समझता हूँ. मुझे एक और इधर ट्रेंड नजर आ रहा है हमारी पाकिस्तानी सियासत में, बहुत ज्यादा दुनिया भर में होता है. एप्स्टीन जीता जागता नमूना है. सो आई एम सॉरी वेस्टर्न वर्ल्ड को, हमारे ऊपर कोई वो जो सिविलाइजेशन का एक तकब्बर था, उनको चाहिए जरा गिरबान में झांक कर देख लें. लेकिन पाकिस्तान के बड़े पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, मैंने जो पिछले चंद दिनों में जिस किस्म की गुफ्तगू देखी है, वो देखकर इतना गुस्सा भी आता है, अफसोस भी होता है और मायूसी भी होती है कि कोई ये कहता है टॉप लेवल के ऊपर कि जी औरतों की तरह जेल में क्यों रो रहे हो, मर्दों की तरह बनो ना. तो फिर कोई आगे से वलायत में बैठ के कहता है अपनी पार्टी के लिए और अपनी पार्टी के लिए नंबर स्कोर करने के लिए कि जी जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, वो वैलेंटाइन वाले दिन क्या कर रही थी क्या नहीं. और तो और जो मुस्लिम वर्ल्ड की फर्स्ट फीमेल लीडर थी, पॉलिटिकल लीडर थी, जो कि अब जिंदा भी नहीं है कि वो अपना दफा पेश कर सके, इवन इन अ डेथ उनको स्मेयर किया जा रहा है और कहा जा रहा है अरे आप जरा बताओ कि क्या तारीख थी, क्या तारीख पैदाइश थी आपकी सबसे यंगेस्ट औलाद की. सो सब में मैं देख रहा हूँ ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ बात कर रही हैं. फिर एक मैं देखता हूँ चीफ मिनिस्टर रह चुका है खैबर पख्तूनख्वा का, वो उठता है और वो एक पॉलिटिकल, अपनी ही पार्टी की एक पॉलिटिकल फीमेल पॉलिटिकल फिगर के बारे में कहता है कि अरे वो तो भाग गई थी, वो तो फलां के साथ चली गई थी, वो तो ढमका के साथ भाग गई थी. एंड ऑल ऑफ दिस I've seen and heard in the space of just 4 days max. ये जो नफरत है खवातीन के टूवर्ड्स कि ये अपना गुस्सा निकालेंगे तो ये इस तरह की बात करके, इस तरह की गुफ्तगू, इस तरह का रेटरिक इस्तेमाल करके जो इतना औरत दुश्मन और मिसोजिनिस्टिक है. हाउ डू यू सी दिस, स्पेशली नाउ दैट यू नो वुमेन्स डे इज नॉट वेरी फार अवे. It's a very triggering reality that you have eliminated at the moment, which is about whenever something goes wrong, you start putting it on women. यहाँ पे तो आपने किसी मर्द को भी गाली देनी होती तो आप उसको उसकी माँ बहन की गाली देते हैं. मर्द मर्दों के साथ लड़े ना, माँ बहनों को बीच में क्यों घसीट रहे हैं? So it's I don't know actually. I don't even know what to say. आपने किसी भी मर्द का मजाक उड़ाना है ना तो आप कहेंगे कि औरतों जैसा, because you hate women so much. And you also hate men who are in touch with their soft side. Because you want men to be those cold, heartless creatures who are only interested in violence in order to prove their masculinity. Because this is the vision, this is how we envision masculinity in our culture. आप जो ये बात करके करते हैं, मुझे ये बताइए कि जब आप ये बात करते हैं कि औरतों की तरह रो रहा है, मुनीब, I can say this with full confidence कि मैंने जितना बहादुर औरतों को देखा है इस मुल्क में, particularly पाकिस्तान, मैंने इस मुल्क की औरत को जितना बहादुर देखा है, अगर आप मुश्किलात को, मुसीबतों को पाकिस्तानी औरत की तरह डील करना शुरू कर देना, it's going to be a different country altogether. मुझे तो ये लगता है कि हमारे यहाँ पे मिडिल क्लास की, लोअर मिडिल क्लास की औरत भी जितनी बहादुर है,
अगर आप यहाँ पे किसी के साथ भी कॉन्वर्सेशन करना शुरू करें, आई गिव यू वन एग्जाम्पल एंड दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल, आई नो सो मेनी अदर एग्जाम्पल्स. So there's this lady I know who comes from a very working class background, जिनके पास वो वाला probably socio-economic privilege नहीं है जो हम लोगों के पास है, जो मेरे पास है, which is why I'm having this conversation with you right now. Her daughter, who's 23 at the moment, और जिस तरह यहाँ in एक particular class में ये वाला भी problem है ना, that you just have particular class, तो क्या यहाँ पे तो हर किसी का यही problem है कि there is a certain marriageable age and the girls should be married by then, but definitely pressure is higher on them. The girl refused to marry her cousin. उसने कहा जी मैं इससे शादी नहीं करूंगी, ये शराब पीता है, जुआ खेलता है, etc. etc. And this is something I do not agree with. I'm not going to do this. माइंड यू कि दोनों माँ बेटियां लोगों के घरों में काम करके, डोमेस्टिक लेबर करके अपना घर चलाती. माँ ने कहा कि मैं ये रिश्ता नहीं दूंगी क्योंकि मेरी बेटी ये रिश्ता नहीं करना चाहती. और अगर तुम लोगों ने किसी किस्म का अग्रेशन शो करना है, किसी किस्म का वायलेंस शो करना है, तो मैं फला फला तारीख को घर पे हूं, मैं छुट्टी करूंगी काम से, आओ और आके मुझे गोली मारो. तो ये मुल्क, यहाँ की औरतें, और ये these are like, you know, these are lesser visible women. These are women you and I would probably not even remember the names of. But these are the ये lived सिर्फ एक experiences of एग्जाम्पल. Pakistani women. This is what represents the These lived are the lived experiences of experiences of. Pakistani women. Exactly. और मुनी बात ये है कि क्योंकि पाकिस्तानी, and unfortunately I wish we did not have to be resilient. I wish we did not have to be brave. I do not take bravery or resilience as a badge of honor because it is not something that you choose. It's a necessity. It is something, it's a Born out of necessity. It is for circumstances. survival. Absolutely. It is a survival skill. You don't have any other option. आपके पीछे अगर शेर पड़ा हुआ हो, आप खड़े हो जाएंगे वहां पे, आप भागेंगे. और इतना तेज भागेंगे कि like you know you might run faster than a marathon runner. तो जिस तरह की जिंदगी यहाँ की औरत गुजारती है और वो चीज मजीद enhance हो जाती है when you are coming from a particular socio-economic class, which is why I strongly believe that feminism cannot be isolated from class struggle. We need to conceptualize feminism as an intersectional framework. हमें उस इंटरसेक्शन को समझना पड़ेगा. हमें इस मुल्क की बहुत ही ऐसी ग्राउंड रियलिटीज हैं जिनको समझना पड़ेगा कि इस यहाँ पे किस तरीके से ऑपरेशन इंटरसेक्शंस में काम करती है. तो जिस तरह की जिंदगियां यहाँ की औरतें गुजारती हैं, मेरे ख्याल में आप किसी बाहर किसी ये जो अपेरेंटली फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, आप अगर कोई नॉर्मल सी भी बात करें ना अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ वुमन इन पाकिस्तान, उनके वही में मुंह खुल जाता है. So this now brings me to final part of our conversation, which is मैंने अभी रिसेंटली एक चीज देखी है कि गाजा के हवाले से जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया डोनाल्ड ट्रंप ने, आई डोंट थिंक कोई भी कॉन्वर्सेशन उस पर्टिकुलर एंगल को डिस्कस किए बगैर कंप्लीट हो सकता है. जब हम बात कर रहे हैं कैपिटलिज्म की, हम बात कर रहे हैं एक्सप्लॉयटेशन की, हम बात कर रहे हैं जेंडर एंड क्लास, और जेंडर और क्लास को कैसे यूज किया जाता है एज अ बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आई थिंक इसका जो जीता जागता नमूना हम लोगों को खास तौर पे इवन मोर सो 2023 के बाद से जो नजर आया है, वो हमें नजर आया कि गाजा में जिस इम्प्यूनिटी के साथ जेनोसाइड कमिट हुआ, सो अब एक बोर्ड ऑफ पीस बना दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि ऐसा लग रहा है कि वो उसने अपना एक पैरेलल यूएन बना दिया और उसको पाकिस्तान ने भी ज्वाइन किया है, शहबाज शरीफ साहब ने भी ज्वाइन किया है, और पता नहीं $1 बिलियन किधर से लाएंगे मेंबरशिप के. लेकिन चलिए ठीक है, सुनने को हम सुन लेते हैं. इन अ वे डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, आप उस चीज को रैशनलाइज भी कर सकते हो. मुझे ये भी पता चला है कि जो एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है जो कि गाजा में रखी जाएगी, आई डोंट स्टिल अंडरस्टैंड कि उसका एग्जैक्ट पर्पस क्या है. आई थिंक इवन ट्रम्प डजंट क्वाइट अंडरस्टैंड दैट. पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं हो रहा. अब इस वक्त बात कुछ ऐसी चल रही है कि शहबाज शरीफ साहब की ना वो वीडियो क्लिप है जिधर वो ट्रम्प की बहुत तारीफ कर रहे हैं, और उसको काफी लोग सोशल मीडिया पर शेयर करके कह रहे हैं हाय हाय नहीं हमें नहीं ये पसंद आया, ये वो लोग हैं जो कि जेनोसाइड इनेबल कर रहे हैं गाजा में, तो फिर इनकी तारीफ आप कैसे कर सकते हो. बट ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि शहबाज शरीफ साहब को मतलब कि उनको सपोर्ट करते हैं. वो कहते हैं कि नहीं, यू कैन नॉट हैव अ वॉइस हर्ड बिकॉज शहबाज शरीफ साहब ने तो उस वीडियो में ये भी कहा है कि जी जो ऑक्यूपेशन चल रही है फलस्तीन के अंदर और दिहाइयों से चल रही है वो अब खत्म होनी चाहिए. तो आप जब तक क्लब के अंदर इनर क्लब में नहीं घुसोगे, यू कैन नॉट मेक योर वॉइस हर्ड. बाहर से चीखने से कोई इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं आने वाले. सो यू हैव टू बी sort of part of the inner club to
आके आप अपना मुतालबा सामने रख सको. Where do you stand on this? Is it somehow productive कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक मीन्स के थ्रू एक जो गैप है उसको ब्रिज करने की कोशिश कर रही है? क्या कोशिश कर भी रहा है पाकिस्तान उस गैप को ब्रिज करने की? और सेकेंडली ये कि how do you see this board of peace? Is it really a board of peace which is led by the likes of Tony Blair of all the people? देखिए, जो ये वाली बात है कि जो क्रिटिसिज्म आ रहा है इस वक्त गवर्नमेंट के ऊपर कि व्हाई डिड यू जॉइन दैट ग्रुप एंड ऑल ऑफ दैट, तो हमें एक बात ये भी समझने की जरूरत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस. ठीक है, माइट इज राइट. Who's the might? It's Donald Trump at the moment. You can hate King Donald Trump. Yeah, it's actually King Donald Trump at the end of the day. So आप इनसे नफरत कर सकते हैं, जो कि आपको करनी चाहिए बाय द वे. आप इनसे नफरत कर सकते हैं, आप इनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप इनके बारे में आवाज उठा सकते हैं, लेकिन you cannot really turn a blind eye to the reality of the world at the moment. शहबाज शरीफ साहब के पास ऑप्शन क्या होती? उनको कोई ऑप्शन दी थी? किसी ने उनको कोई चॉइस दी थी? उनको कहा गया होगा ये ज्वाइन करना है. हम गरीब लोग हैं, हमारे पास ये प्रिविलेज नहीं है कि हम ना करें. हमें जब कोई चीज हमें कहा जाता है कि आपने ये करना है, हमसे पूछा नहीं जाता. तो आई डोंट रियली थिंक दैट दे हैड अ चॉइस एज सच. और जहां तक बात यह है कि व्हाट डू आई थिंक ऑफ इट, तो अगेन परफॉर्मेटिव. जहां पे डोनाल्ड ट्रम्प हो, जो कि खुद किस तरीके से इमिग्रेंट्स के साथ जो सलूक कर रहा है अमेरिका के अंदर, आए दिन हमें अमेरिका के हवाले से जो खबरें आती हैं, those are so disturbing. Like Muneeb, I work with young children, not young adults, sorry, not young children. I work with young adults, and mostly my students are, as you would call them, Generation Z. मैं काफी कई दफा अपने जहन में कंपेयर करती हूँ वो वाली चीज कि व्हेन आई वाज at their age और जो ये लोग बात करते हैं. मेरी जनरेशन जब मैं इस उम्र में थी तो हम लोग बड़ा फैसिनेट करते थे अमेरिका को. हमें लगता था कि इट इज द सिटाडेल ऑफ डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स एंड दिस दैट. आजकल के बच्चों का ये सीन नहीं. दे आर नॉट डाइंग टू गेट अ यूएस वीजा, क्योंकि उनको वो ग्लोबली कनेक्टेड हैं. मेरा एक्सपोजर जो यूएस का था वो फ्रेंड्स के थ्रू था. आई लव वॉचिंग फ्रेंड्स. मुझे ये लगता था न्यूयॉर्क में सारे इसी तरह रहते हैं. So you work in a cafe and then you live with your friends and you are having so much fun, you're meeting interesting people and you're wearing you're working in a cafe, yet you have the access to all these great designer clothes and everything. तो ये अब बच्चे बच्चे को पता है, हर किसी को पता है कि अमेरिका में क्या हालत है, वहां पे क्या सिचुएशन है, अमेरिका ह्यूमन राइट्स के हवाले से कहाँ पे खड़ा हुआ है. आई थिंक maybe a few years from now, we will have to revisit this framework of first and third world if it is on the basis of human rights available to the people living there. तो ये लोग तो जो भी करेंगे, आप क्या बिल्ली को चीचड़ों की रखवाली में बिठा सकते हैं? मुझे अभी जो बात पता चल रही है अल अक्सा कंपाउंड के ऊपर, बाय द वे, जो कि एग्रीमेंट थी 1967 के बाद से कि वहां सिर्फ मुस्लिम्स अपना प्रेयर ऑफर करेंगे, और उस एग्रीमेंट को तोड़ा जा रहा है. अभी ये जो फार राइट गवर्नमेंट है बेंजामिन नेतन्याहू की, इजरायली फोर्सेस खड़े होते हैं अल-अक्सा के बाहर और टोटली पुलिस कर रहे होते हैं, पर्टिकुलरली मंथ ऑफ रमदान में मुस्लिम वर्शिपर्स को. एंड इन्होंने वो 1967 के बाद की एग्रीमेंट को रिपीटेडली वायलेट भी किया है. और उधर जाते हैं पीपल लाइक इटामार बेन ग्विर, जो कि वहां का हार्ड लाइनर मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर इसराइल का, और वो उधर जाकर अपने प्रेयर्स ऑफर करते हैं, विच इज लाइक अ डायरेक्ट चैलेंज टू द एग्रीमेंट व्हिच वाज डन बिटवीन द अरब मुस्लिम एंड द ज्यूइश कम्युनिटीज एट द टाइम. और वो ये बार बार इसी कर रहे हैं बिकॉज वो शो करना चाह रहे हैं क्या कर लोगे ज्यादा से ज्यादा. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की एडवाइजरी ओपिनियन ले लोगे, जनरल असेंबली से रेजोल्यूशन पास करवा दोगे, कर लें क्रिटिसाइज हम लोगों को. माइट इज राइट. सो इसीलिए अभी वेस्ट बैंक के अंदर और सेटलमेंट्स बनने का प्लान बाय द वे पुख्ता हो गया है, पक्का हो गया, दे प्रोग्रेसिंग विद दैट. तो गाजा में क्या ही ये कर लेंगे. एक भी पैलेस्टीनियन वॉइस नहीं है इस बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर. एंड वी सॉ कि जब एक भी अफगान वॉइस नहीं थी, और क्या हुआ था दोहा एग्रीमेंट में. और फिर देखिए कि जब वॉइसेस, अगर आप कुछ एक आधी इस तरह की केसेस में जब आपको एक आधी वॉइस डाल भी लेते हैं ना, तो वो उस तरह की वॉइस होती है जो कि उस क्लास से आ रही होती है
जो कि इन मिसाइल से डायरेक्टली अफेक्ट नहीं होते. Yeah. एंड वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि जब सॉलिडारिटी बिल्ड होती है कहीं पे भी, सॉलिडारिटी में हमेशा द यूनिफाइंग फैक्टर इज नॉट ऑलवेज द एथनिसिटी, इट्स योर क्लास. Mm-hmm. So you basically safeguard the interests of your own class, and that is how it goes. ये वही बड़ी बात है कि जिस तरह हमारे यहाँ ये बड़ी बात कही जाती है कि हिंदू बच्चियों की जो जबरी शादी होती है, so we do have parliamentarians who are coming from that community. Why don't they do something about it? It is because everybody guards the benefits of their own class. Unfortunately, इसके अंदर भी यही वाली बात आती है कि वो क्लास का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है. ये अगर वो वॉइसेस डाल भी लेंगे तो वहां की ऐसे वॉइसेस डालेंगे जिनको रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है या क्या नहीं होता. एक परफॉर्मेटिव सब कुछ, इवन इफ दे एवर डू दैट. मुझे तो तो वो यही परफॉर्मेंस होगा. और आप ये ज्यादा देखिए, मौखरी लग रही है कि जैसे जानबूझ के कह रहे हैं, हंस रहे हैं, जैसे कि मजाक उड़ा दिस रहे इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट. मुनीब, दिस इज इंटेंशनल, दिस इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट. आप रमजान में मुसलमानों के साथ किया गया एक मुआहिदा ना सिर्फ तोड़ते हैं बल्कि जाके अपनी इबादत भी करना शुरू कर देते हैं. व्हाट डज इट सिग्निफाई? इट्स अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट कि जो मर्जी कर लो, जो मर्जी ब्लॉक्स बन जाए, जो मर्जी पूरी दुनिया में हमारे खिलाफ आप रैलीज निकाल लें, पूरी दुनिया से हमें थू थू होना शुरू हो जाए. वी आर सीइंग दैट हैं. हाउ पीपल आर कंडेमिंग बिल्कुल. what Israel is doing in Gaza. बिल्कुल. Like अभी it ऑस्ट्रेलिया is, में ही प्रेसिडेंट yeah, आइजैक हर्जॉग, ये क्या बात था, तो कुट किसको पाड़ रही थी? जो ऑस्ट्रेलियन प्रोटेस्टर्स थे वेन्यू पर, कुट उनको पाड़ रही एग्जैक्टली. मैंने खुद ऑस्ट्रेलिया में एक दफा एक प्रोटेस्ट देखा. ये बात है 2024 के एंड की. तो एक प्रोटेस्ट हो रहा था जिसमें बिकॉज ऑब्वियसली इन डेमोक्रेसी एवरीवन हैज द राइट टू प्रोटेस्ट. तो वहां पे ज्यादातर प्रोटेस्ट बिकॉज पैलेस्टाइन के हवाले से होते थे, अबाउट लाइक पीपल हु आर इन द फेवर ऑफ पैलेस्टाइन, सॉलिडारिटी विद पैलेस्टाइनियन पीपल ऑफ गाजा. ये प्रोटेस्ट हो रहा था जो ज्यूज की तरफ से हो रहा था, जिसमें वो ये बात कर रहे थे कि हमें टारगेट किया जा रहा है, उस हवाले से एंटी सेमिटिज्म हो रहा है एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स. एंड यू वोंट बिलीव, पैलेस्टाइन के जब प्रोटेस्ट वो सारा कुछ होते थे, उस तरह की सिक्योरिटी रिक्वायर्ड नहीं होती थी. इसमें ज्यादा लोग भी नहीं थे, और ये मैंने दूर से देखा, वहां पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी. So despite all of that, and I'm talking about a Western liberal democracy, जहां पे ये वाली चीज हो रही थी कि वहां पे भी उनको भी डर था सो देन कि यार आई एम यहाँ के नॉट लोग हमें सरप्राइज्ड कि अभी टकर कार्लसन ने इंटरव्यू किया है माइक हकबी को, जो कि एम्बेसडर है यूएस का टू इजराइल, और हकबी ने अभी ये रिसेंटली कहा है कि पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट दरअसल इजराइल का होना चाहिए, पूरा मिडिल ईस्ट होना ही इजराइल चाहिए डिफेक्टो, सो दैट विल बी फाइन. सो आई थिंक दिस इज मॉडर्न डे imperialism, colonialism, which is unfolding, has been unfolding for decades before our very eyes. अब यहाँ से बातें किधर को जाती हैं, कांट रियली से. अभी तो ट्रम्प साहब का मुझे नजर आ रहा है, उनको बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है कि यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपने टैरिफ्स लगाए, आपके पास लीगल अथॉरिटी नहीं थी, तो उन्होंने आज कह दिया मैं 10% टैरिफ्स अब एडिशनली सारी दुनिया के ऊपर लगाता हूँ आज, बारिंग अ फ्यू एक्सेप्शंस. सो आई थिंक वी ट्रूली लिव इन अ वर्ल्ड जिधर वो जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर था ना, वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया है, जो कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी रिसेंटली कहा है. तो अब वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर? Can't say much, but at the same time, when we see trends, which is too little too late, agreed, कि somebody like Andrew Mountbatten Windsor gets arrested, तो चलो थोड़ी बहुत एक ray, एक glimmer of hope नजर आती है. How far that will go, only time will tell. But thanks a lot for joining today. I think बड़ी fruitful और बड़ी productive और constructive conversation थी ये. It's very refreshing कि कोई चीख नहीं रहा होता, तानाबाजी नहीं कर रहा होता, और two-way dialogue कर सकते हैं. मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है whenever it happens. Thank you so much, Mani. Thank you for having me here. Or actually, I have been away from social media for a while, and I have been away from screen for a while. So it's very refreshing because मुझे आज की podcast से बिल्कुल लगा ही नहीं कि it was a podcast. I just thought we were having a chat. Yeah, So yeah, thank you so much. thank you.